خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا اور اس پر الزام لگایا گیا۔ مختار پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اس کو پاس بلا کر کہا، یہ کیا ہے جو میں تیرے بارے میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہے گا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا، میں کیا کروں اب، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، خدائی مجھ سے نہیں ہوتی، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ جب مختاری سے ہٹا دیا جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا، تو نے مالک کا کتنا دینا ہے؟ اس نے کہا 100 بت تیل، 100 لیٹر تیل ہے، 100 بت تیل۔ مختار نے اس سے کہا، اپنی دستاویز لے اور 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے کو کہا، تو نے مالک کا کتنا دینا ہے؟ اس نے کہا 100 کر گھیوں۔ اس نے اسے کہا، اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت کی تعریف کی، اس لیے اس نے ہوشیاری کی۔ ٹھیک ہے، مالک نے تعریف کی ہے اور کہا اس نے ہوشیاری کی۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریقوں میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب یہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کریں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح وچ میرے عزیزوں، دنیا دا ہر استاد وکھرے وکھرے طریقے دے نال اپنے شاگرداں نوں پڑھاندا تے سکھاندا ہے۔ ہاں جی، ایک سکول چ کوئی 10 ٹیچر ہون، 20 ٹیچر ہون، ہر ایک ٹیچر اپنے اپنے طریقے نال۔ اسی طرح مسیح خداوند دے وقت بھی جڑے ربی سن، جڑے استاد سن، ادوں تے سکول کوئی نہیں سن، لوگ انہاں دے کول بیٹھتے سن تے وہ سکھاندے سن۔ یسوع دے وقت بھی ربیاں دا اپنا اپنا سٹائل سی تے یسوع مسیح دا بھی اپنا سٹائل سی۔ یسوع دا سٹائل کی سی جی؟ یسوع دا سٹائل سی جیڑی بھی گل کوئی سکھانی ہے، کوئی سبق دینا ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، ایک کوئی طریقہ سی یسوع دا، اور وہ طریقہ سی تمثیلاں دے نال۔ یسوع تمثیلاں سناندا سی، کوئی تمثیل تے نہیں، اپنا جڑا مقصد سی، اپنا جڑا سبق ہے وہ سکھا دینا۔ تمثیل کی ہوندی ہے؟ تمثیل ایک کہانی ہے جہدے وچ مختلف کریکٹر ہوندے نے، لوگ ہوندے نے، اداکار ہوندے نے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوندے نے تے پھر کوئی نہ کوئی ایک ماحول وکھایا جاتا ہے، شہر دا، پنڈ دا،
कोई ना कोई जगह बहाई जाती है, और ये बहुत अहम है। मसीह खुदावंद हमेशा तमसीलों के नाल कलाम सुनाता है। ज़रा एक एक करके दसो केड़ी तमसील है तुहानू याद होवे, बोलो जी। बीज बोने वाली शाबाश, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, एक तमसील। और राई के दाने की तमसील, शाबाश, वेरी गुड। मुसरफ बेटे दी पिछला इतवार। और हाँ जी, 100 भेडां ली पिछला इतवार। 10 कुंवारियां, शाबाश, वेरी गुड। होर बहुत सारिया तमसीलां ने। यसू ना इको ही तरीका है, यसू का स्टाइल ही इको ही है, और वो स्टाइल है तमसील। तमसील की है एक कहानी, तो कहानी जी है ना वो बंदा बहुत आसानी ना समझ जाता है बंदा कहना की है। तो खासकर मशरकी लोग जड़े ने कोई गल करनी होवे या इशारियां च करते हैं, ठीक है, या उल्टा पलटा के गल करनगे, तो या कहानियां च गल करनगे। साडे भी लोग कोई गल करनी इधरों भी बुला के करनी, सीधी नहीं करनी। हाँ जी, आखा धी नूं ते समझावा सीधा नहीं नूं नूं कहना, इधरों दी बुला के किनू कहना ते समझान किनू नया नूं नूं। साडा तरीका है, मशरकी लोगों का तरीका है गल करन दा। किसी नूं अठाना होए ना तो अपने मुंडे नूं कही जाना, चलो उठ तो निकल जाओ बाहर। वो अपने मुंडे नूं नहीं कहन दिया, की कहन दिया, ओए उठ तो निकल जाओ बाहर। आखा धी नूं समझावा नूं नूं। ये तरीका साडा। यसू मसीह का तरीका भी ना मशरकी तरीका है। एक कहानी सुना दो, आप ही अपना अपना सबक कढ़ लेंगे। मैं 2 तमसीलां समझावांगा पुरानियां, ते तीसरी अज की तमसील ते गल करांगे, ताकि ना ज़रा अज इस तमसील नूं ज़रा समझ सकीए। मैं एक तमसील बहुत पिछे लेना वा, 2-3 इतवार पहले सवाल किया किसी ने यसू ने, खुदावंद मेरा हमसाया कौन है? तो यसू ने जवाब नहीं दिता, तमसील सुना दी। केड़ी तमसील सुनाई सी? शाबाश, बोलो ज़रा। नेक सामरी, सारे बोल दोगे? नेक सामरी तमसील सुनाई है। ज़रा किन्ने करैक्टर ने ये विच? नंबर 1 कितों शुरू होंदा है? मुसाफर तो। एक मुसाफर, हाँ जी, यरूशलेम तो यरीको जा रहा। जगह भी दसियां ने, वो भी अहम ने, लेकिन पहला करैक्टर है मुसाफर। यरूशलेम आंदे सन खुदा दा शहर है, तो यरीको आंदे सन शैतान दा शहर है। सो जा किधर रहा है? खुदा दे शहर चो शैतान दे शहर चो। जरूरी ने, ये जगह भी बहुत अहम है। पहला करैक्टर तो जाते हैं। दूजा करैक्टर डाकू, मारिया लुट के चला गया, दूजा करैक्टर। तीजा करैक्टर कौन है? कौन? काहिन। मुसाफर डिगा पिया है, काहिन ने वेख्या है, ओ उधरों दी होके निकल गया लांबे लांबे। चौथा करैक्टर कौन है? लावी, वो भी परा परा होके निकल गया है। पंजवा करैक्टर कौन है? सामरी। ठीक है, यसू कहानी सुना रहे। हर एक दे विच ना किरदार ने, करैक्टर ने, आदमी ने, लोग ने, ते हर एक दे नाल जुड़ी कोई ना कोई कहानी है। एक कल्ले दे नाल नहीं। एदा मरकज सामरी ने, ठीक है, एदा मरकज डिग्या होया बंदा है। बाकी उहदे आले दुआले घूमन डे ने। पहला वो उधरों भी होकर लंघ गया, दूजा भी वो उधरों की लंघ गया। सामरी आया, उन्हें उन्होंने चुकया। यसू की कहना चाहता है? यसू आंदा है हमसाया वो है जिहड़ा डिगे हुए ने चुकेगा, डिगे हुए ने चुकेगा।
ਲਾਂਬਿਓ ਲਾਂਬਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਹਮਸਾਇਆ ਜੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। 15ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ 3 ਤਮਸੀਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਸਿੱਕਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਤਮਸੀਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ 100 ਭੇਡਾਂ, ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ, ਉਹ ਗਵਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਿਆ ਦੌੜ ਕਰ ਗਿਆ और उसको गले लगा लिया। ਯਿਸੂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਯਿਸੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ? ढूंढो, मांगो तो तुम्हें, अगला ढूंढो तो। औरत का सिक्का गवाचा है, ढूंढिया कि नहीं उन्हें? कादे नाल? झाड़ू नाल। बंदे की भेड़ गवाची है कि नहीं? लभन गया कि नहीं? ढूंढन गया है कि नहीं? गया है, लभ्या, कंधे ते चुक्या तो खुशी मनाई है। ढूंढिया, गवाच गई, सिक्का गवाच गया, भेड़ गवाच गई, पुत्र गवाच गया। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਆਬਾਦ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੁਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਨ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਲਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਜਾਣੇ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਮਸੀਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੱਭਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਢੂੰਡ ਕੇ। औरत ने झाड़ू फेर के लभा है, ठीक है। आदमी जड़ा दूर पहाड़ा च गया, सफर करके, मेहनत करके, तरद्दुत करके लभ्या, बड़ी मेहनत करके तो मुड़ के उन्होंने मोढियां ते चुक्या। मैं सोचन रहा जो मैं होंदा तो मैं इन्हूं कुटना भी बड़ा सी, खपाता ही सारी दिहाड़ी, लेकिन रब मेरे अगा नहीं है, वो तो बहुत मेहरबान है ना, वो तो छुपान है, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी नहीं होगी। कंधे ते चुक के लाया। यीशु मसीह तमसीला ना समझाण दिया। अज मैं बहुत सारिया तमसीला ने, मैं हर एक नहीं, मैं सिर्फ दसन दिया वा किस तरह यीशु तमसीलों के नाल समझाता है। अज की तमसील जी आने आसी कादी तमसील है? बहुत दयानत लोगों की, एक करप्ट टोला है, एक नहीं, ये सारे इको जे ने। मजेदार की गल जे, सारे इको जे ते किन्ने किरदार ने? नंबर 1 जिहड़ा मालक है, नंबर 2 जिहड़ा उहदा मैनेजर है, मुख्तार है, ते तीजा जिन्होंने कर्ज दिता है, चौथा यीशु जे आप ही। वो हर तमसील दे विच एंड विच चौथा यीशु आप ही होता है। हाँ जी, आप ही। जरा थोड़ा जिहा इस तमसील नूं समझिए। नंबर 1 मालिक है, उन्हें किते बाहर जान लगा तो अपने मुख्तार नूं, अपने मैनेजर नूं, अपने मुंशी नूं की क्या सू, ए पैसे नहीं तो जा लोकां नूं दे। काहदे ते? शाबाश बोलो जरा, सूद ते। यहूदियां च सूद मना है, पाक कलाम च लिखा है, शरीयत च लिखा है। अज दी पहली तलावत
बड़ी कमाल दी है, सूद मना है, पर एक करप्ट लोगों का टोला है। पहला बंदा भी करप्ट ही है, मालिक भी करप्ट ने आख्या दे दे तू सूद ते। मुख्तार किहो जाए, हाँ जी, वो भी बददियानत है, वो भी करप्ट है। उन्हें की कीता है, उन्हें सूद ते पैसे दिते जरूर ने, पर जेडे आए ने वो की कीता है, खा गया। लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी, उसने अयाशी में उड़ा दिए। याद आया ये 16वां बाप है, 15वें बाप यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए ने किदे ले, मुशरफ बेटे ले, कि उसने अपने बाप का माल ऐशो इशरत में, सेम लफ्ज़ उड़ा दिया। 15वें बाप 16वें बाप च लफ्ज़ इको ही है, उड़ा दिया। मालिक भी करप्ट, मुख्तार भी करप्ट। एक दिन मुख्तार वापस आया, मालिक वापस आया तो उन्होंने राज ही लोगों ने दस दिता है, आ जरा तेरा मैनेजर है ना मुंशी, ये बड़ा करप्टी। उन्हें की कीता है, उन्होंने बड़ी करप्शन की है, बड़ी बददियानती की है। उन्हें उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या, मैं सुनिया है कि तू बददियानत है, तो हुण तू मेरा मुंशी नहीं रहेगा, मेरा मैनेजर नहीं रहेगा, मेरा मुख्तार नहीं रहेगा, चल फारग आउट। बंदा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया जी, बोलो जरा, क्यों हो गया परेशान? नौकरी गई, शाबाश, नौकरी गई। जो नौकरी गई है ना, फिर बड़ा कमाल दा सीने, गौर ना सुनियो, आके घर कहन लगा हुण मैं की करा, ये अल्फाज ने, अब मैं क्या करूं, मेरी नौकरी टुर गई, हुण मैं की करा। अपने आप को पूछन दिया, मैं की करा, मैं की करन जोगा वां। दो गल्लां कहियां सू की, पहला आंदा खुदाई मुझसे नहीं होती, हाथ ना काम में, काम नहीं मेरे को आउंदा, हुण मैं करांगी, नौकरी तो फारग, हुण मैं की करा, भाई की करा, आंदा कदी काम तो मैं कीता नहीं, खुदाई मुझसे नहीं होती, तो दूजा दो ही तरीके ने ना आमदनी दे, या काम कर लवो तो या मंग लवो। वो कहता मेरे को दोवें ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें कभी दोवें कीते ही नहीं, उन्हें तो कभी काम किया ही नहीं, वो तो ऐश उड़ा रहा सी, किदे पैसों ते, मालिक दे पैसों ते। कहता खुदाई मुझसे नहीं होती और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। तो कहता हुण फिर मैं की करा, वो ज़हन च एकदम आया, कहते हाँ मैनू समझ आ गई मैं की करना, करप्शन करनी, और की करना। किस तरह उन्हें जल्दी ना जिन्होंने पैसे दिते सन ना सूद ते, उन्होंने बुलाया, पहले नू बुलाया, कहता तू मालिक का किन्ने देने नहीं, वो कहता मैं 100 बत्त तेल देना, बत्त को 1.5 किलो का होंदा है, मैं 100 बत्त तेल देना। कहता कापी कित्थे, लिया इधर कापी, तो किन्ने लिख दे, 50। वो भी अगों करप्ट ने, उन्होंने नहीं कहा ना यार ना कर, उन्होंने आख्या अल्लाह फड़ कापी, तो की कर दिता ने, 100 नू की कर दिता है 50। ये लैन लग गई है ना करप्ट लोगों की। वो दूजे नू बुलाया, उन्होंने आख्या तू मालिक दे किन्ने देने नहीं, वो आंदा मैं 100 किलो गंदम देनी है, कहता लिया कापी, तो किन्ने लिख दे, 80 लिख दे। उन्होंने कापी फड़ाई, वो भी यहो जिहा ही है, आंदा हल सारे ही मौज करन डे ने, सारे ही खुश हो गए ने, पर कादे ते, बददियानती ते करप्शन ते। अज की तमसील एक करप्ट लोगों की तमसील है, बददियानत लोगों की, तो सारे एक दूजे की तारीफ करन डे ने। जदों मालिक नूं पता चलिया ना, जिन्हें पैसे दिते सन, कि इन्हें शियारी की कीती है, कि 100 वाले दे एक दे 50 कर दिते सू, हाँ जी, तो एक दे 80। जरा गौर ना सुनियो, ये कीते क्यों सू, उन्हां दे नाल फेवर क्यों कीती सू, उन्हां ते मेहरबानी क्यों कीती सू। आंदा काम तो मैं कर नहीं सकता, भीख मंगन तो शर्म आउंदी है, चलो लोगों को फसाओ, साथी बनाओ, जो मैनू ये कढ़ेगा मैनू क्यों रोटी तो देणगे। उन्हें अपने रहन का, अपने आने वाले कल का, अपने मुस्तकबिल का बंदोबस्त किया, ये कढ़ेगा
ਆਪੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸੂ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਵੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਬਦਦਿਆਨਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। 100 ਨੂੰ 50 ਤੇ 100 ਨੂੰ 80 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਸੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਦਦਿਆਨਤਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? गौर करो यीशु मसीह ने की क्या है? यीशु मसीह ने क्या है? इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा क्या है? तारीफ की है कि नहीं? की है कि नहीं? की दी कह रहे हैं अब बात ध्यानता दी और की दी। ये बहुत सारे गैर मसीही वो कहते हैं यार यीशु मसीह ने तारीफ कर दी है। ठीक है, ये सवाल है, हाली जवाब नहीं दिता, लेकिन ये इतों तक सही है कि यीशु ने तारीफ कर दी है कि भी जो बददयानत ने ना ये बड़े इंटैलीजेंट ने, ये बड़े हुशियार ने। तो किन्ना नालों ज़्यादा हुशियार ने? नूर के फरजंदां नालों। ये बेईमान लोग ईमानदारां नालों बहुत हुशियार ने, तो यीशु ने तारीफ कर दी है। ये सच्ची गल है, तारीफ की। लेकिन किस गल की तारीफ की है? वो सामने एक पासे बददयानत ते दूजे पासे दयानतदार खलोते ने। यीशु कहता है इन्हां विचों हुशियार किहड़ा है? बोलो बोलो तो कोई गल नहीं। बददयानत ते यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि दयानतदारो तुसीं भी इन्हां वांगू हो जाओ, ये नहीं यीशु कह रहा। तमसील गौर ना सुनियो, मता असी यीशु ने भी उसकी तारीफ करने वाले कह देंगे। यीशु ये नहीं कह रहा कि शाबाश बददयान तो वैरी गुड ते दयानतदारां नूं कहंदे तुसीं भी इदां कर पहुंचो ना। इत्थे आके फर्क है। यीशु कह रहा है ये बददयानत लोग, ये दुनियादार लोग मेरे शागिर्दां नालों, मेरे मनण वालों उन्हां लोकां तो ज्यादा तेज ने। जिन्नी बेईमानी करने लई ज़हन वो इस्तेमाल करते हैं, हुशियारी इस्तेमाल करते हैं नेकी करने वास्ते, मेरे शागिर्द इन्नी हुशियारी नहीं कर रहे। ये यीशु कह रहा। तो की कह रहे यीशु? कह रहे यार ये तो वादो हो मेरे मनन वाले हो, ये देखो बदी वाले पासे किन्ने तेज लोग ने ते नेकी वाले पासे इन्हां तो भी बहुते होने चाहिए ने। ये यीशु का पैगाम है। सो यीशु बददयानती की तारीफ नहीं कर रहा। बददयानत अपने शागिर्दां नूं वहा के ये बददयानत लोग ने, हुशियार लोग ने, किन्ने तेज ने, ते तुसी जिहड़े दयानतदार हो तुहानूं इन्हां तो किते ज़्यादा तेज, किते ज़्यादा हुशियार ते किते ज़्यादा बादशाही का प्रचार करने वाले होना चाहिए। आमीन। सो यीशु नूं गलत ना समझो, यीशु तारीफ नहीं कर रहा। यीशु सिर्फ दोनों ना कंपेयर कर रहा है, मुआजना कर रहा है, बददयानत ते ईमानदार। यीशु ने क्या इधर टोला पा रहा है, हाँ जी है ना, टोला पा रहा है, पर अपने शागिर्दां नूं क्या है, तुसी थोड़े हो, ठीक है, स्लो हो, इन्हां कोलों करप्शन ना सीखो। ये ज़हन खुदा ने उन्होंने भी दिता, तुहानूं भी दिता है। वो बदी लई इन्ना इस्तेमाल करते हैं, तुसी नेकी लई क्यों नहीं करते? नेकी लई अपनी ताकत नूं, अपने ज़हन नूं, अपनी सोच नूं, अपनी ताकत नूं इस्तेमाल करो। ये यीशु दा पैगाम है। तू अपने खुदावंद, अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से बढ़कर प्यार कर। यीशु कह रहा है
ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਯਿਸੂ ਨਾ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। 80% ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ 80% ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਮਸੀਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ? ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਲਾਵਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ? ਦੌਲਤ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਗਵਾਚਾ ਕੀ ਔਰਤ ਦਾ? ਦੌਲਤ, ਭੇਡ, ਦੌਲਤ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੌਲਤ। ਦੌਲਤ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਹੈ ਤਮਸੀਲ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 1। ਜਿਹਨੇ 5 ਨਾਲ 5 ਕਮਾਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਦੌਲਤ ਕਮਾना, ਪੈਸੇ ਕਮਾना, खुशहाल होना खुदा मना नहीं करता। गलत ना समझियो, गलत ना समझियो। वो तो शाबाश देंदा है जिन्हें 5 ना 5 कमाए ने, शाबाश दी। तो जिन्हें 2 ना 2 कमाए ने, उन्होंने भी शाबाश दी। तो जो जमीन थले रख के उत्ते बह गया, उन्होंने की किया है? शाबाश दी है। नहीं आख्या ये को भी ले लो। मेहनत करना, तरक्की करना, खुशहाल होना यसू नहीं रोकता। यसू तो कहता है मेहनत करो, कमाओ, खुशहाल हो, खुशहाल हो। यसू कहता है, लेकिन किस तरह? ईमानदारी ते दयानतदारी, 2 ही तरीके ने दुनिया च चलन दा। बददयानती ना दौलत कमा रहे ने ते दयानतदारी ना। आम तौर पर जो अमीर लोग ने कादे नाल कमान डे ने? कादे नाल? बोलो तो सही। बददयानती है। आंदे ने जी 80% अमीर लोग किसी ना किते जाके कपला मारिया, किते ना किते। लेकिन आया एक कपले दे नाल, बददयानती नाल दौलत कमाई हुई, ये इंसान नूं बरकत देंदी है, अमन सुकून देंदा है? नहीं। एक सर्वे आया कि दुनिया दे विच कौन नौजवान ने ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਟੇ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਵਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਗਲਤ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਦੌਲਤ ਬਾਬਰਕਤ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੋ। मैं दोबारा कहना, यसू मसीह वालों खुशहाल हो, मेहनत करो, कमाओ, अपने लिए, अपने खानदाना लिए, तालीम हासिल करो, अगे बढ़ो, तरक्की करो। ये गलत नहीं, पर बददयानती दे नाल नहीं। कादे नाल? दयानतदारी दे नाल। कादे नाल? एक बार सारे बोल दो, कादे नाल? बस अज दा पैगाम ये होई है, दयानतदारी दे नाल। खुशहाल हो, दयानतदारी नाल। खुदा का शुक्र है पाकिस्तान च साडे लोगों की ये पहचान जरूर है कि साडे लोग, ठीक है, शायद बहुत कोठियां कारा वाले नहीं हैं, पर दयानतदार जरूर है। इस पहचान नूं बरकरार रखिए, कायम रखिए। पर ये नहीं मैं कह रहा कि गरीब ही रहिए ना, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा
ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ।